The probe deadline in the Brijbhushan Sharan case ends on June 15, and pressure is mounting on the police to file a charge sheet before the stipulated time. As the high-intensity probe in the case is underway, a massive twist today where an eyewitness today come forward and not only corroborated an earlier statement that had been made by one of the 7 lady wrestlers who had accused Brijbhushan Sharan Singh of molestation, but also outlined Brijbhushan Sharan Singh's other misdemeanors over the last 10 years. International referee Jagbir Singh has testified against Brijbhushan Sharan Singh and said that during a trial event in 22 in Lucknow, Brijbhushan Sharan Singh touched a woman wrestler inappropriately who looked extremely uncomfortable, and that he was witness to it. This woman wrestler in the FIR that was filed in May this year has listed out that same episode that happened in Lucknow. Now, multiple other instances have also been put forward showing how Brijbhushan Sharan Singh has been a serial offender. In fact, the other eyewitnesses who had stepped forward had given other testimonies where they said that Brijbhushan Sharan Singh got on the mat with women wrestlers and tried to grapple with them during a 22 World Championship in the name of teaching them some moves. Jagbir also narrated that Singh was drunk at a 2013 Phuket Asia Championship and passed lewd comments on women wrestlers. In fact, Brijbhushan Sharan Singh planned a massive show of strength on the 11th of June. This program is proposed at Raghuraj Sharan Singh Mahavidyalaya next to Balapur on the Gonda-Lucknow road. However, there are various eyewitnesses who have come out to testify against this man, an Olympian, a Commonwealth gold medalist, an international referee and a state-level coach. All of them have corroborated the statements made by at least 3 wrestlers. As the investigation in the case proceeds, the minor victim's father, though, took back his complaint under the POCSO Act. The father of the minor wrestler has now told PTI that he deliberately filed a false complaint of sexual harassment against Bhushan because they wanted to get back at him for a perceived injustice to the girl. The animosity, he has now said, goes back to 2022 under 17 Asian Championship trials in Lucknow, where the minor lost the finals and missed out being selected to the Indian team. The minor's family blamed Bhushan for the referee's decision. आपने बृजभूषण के खिलाफ क्यों गुस्सा माना अगर रेफरी की गलती थी तो? अब रेफरी किसने नियुक्त किया? फेडरेशन ने। जी। जो भी टीम बनती है वो फेडरेशन से वो करती है। जी जी। फेडरेशन हेड कौन है? बृजभूषण। तो फिर किसके खिलाफ कंप्लेंट गुस्सा होगा अगर? ठीक है। तो फिर आपने फिर वापस क्यों ले लिया ये सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस? देखो, जो चीज क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहती है। पहले चीज कोर्ट में जाके क्लियर हो, लेकिन जब बात हुई मेरी वहाँ फेडरेशन में बात हुई, बोला भाई ठीक है आपकी बेटी से तो ही हम एग्री करते हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, अगर कार्रवाई कर रहे हो तो कोई बात होती है, क्योंकि उस टाइम को उन्होंने मना कर दिया था। सॉरी मैं समझा नहीं, किसने मना कर दिया था? जिस टाइम को कुश्ती खराब हुई तो ऑफिशियल कमेटी उन्होंने मना कर दिया कि कोई कार्रवाई नहीं है, आपको कुश्ती लड़ा नहीं तो लड़ा नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर क्या करेगा आदमी? ठीक है, तो वो उस चीज का गुस्सा आपके मन में था? बिल्कुल था सर, वो होना ही छोटी सी चीज है क्या ये? नहीं मैं समझ सकता हूँ, बच्चे का मामला जहाँ पर वो माँ बाप थोड़ा ज्यादा फिक्रमंद होता है क्योंकि उसकी खुद की भी मेहनत होती है। फिक्रमंद क्या करेगा ये बताओ आप? जो बच्चा 12 महीने मेहनत कर रहा है दिन रात एक करके, और ये उस रेफरी मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। जी। जिस बेटी का फाइनल कुश्ती वो भी मेरी बेटी है, दूसरी भी। जी। लेकिन उसको किसने बोल दिया कि पार्शलिटी करने के लिए? उसका क्या गया? जी। 1 साल की मेहनत मेरी बेटी खराब हुई, जो खर्चा लगा है, जो वेस्ट हुआ है, जो टाइम वेस्ट हो गया, या टूर कैंसिल हो गए, वो तो मेरे हुए हैं और किसी के नहीं हुए ना। जी। Meanwhile, the BJP MP supporters have branded this withdrawal of complaint as a vindication for him. Brijbhushan Sharan Singh himself claims that he is waiting for the charge sheet next week and will wait for the court to give a final decision. सर पुलिस आई थी आपके? हम तो कमरे में सो रहे थे भाई। सर क्या कोई रेस्टोरेंट भी आया था सर आपके पास? अरे हमारे पास कोई नहीं आया था। नहीं हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया था, हमारे पास कोई नहीं आया था, हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया।
All right, so who is this eyewitness who has corroborated the statement given by one of the lady wrestlers? Why has he come forward now, and what does he have to say about the FIR and what is described in it? Jagbir Singh, international referee and an eyewitness in the case, is joining us. Jagbir ji, सबसे पहले तो आप ये विस्तार से बताइए कि पुलिस ने कब आपसे कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद क्या हुआ? देखिए, एक 17 तारीख से 20 तारीख तक एक टूर्नामेंट था अंडर 17 अंडर 23 का पटियाला में। ग्रीक रोमन और लड़कियों की कुश्तियां पटियाला में थी, तो मैं वहाँ पर रेफरशिप के लिए जूरी मेंबर के लिए गया था वहाँ पे। तो 19 तारीख को एक फ़ोन आता है मेरे पास कि आपकी ये जो पहलवानों का प्रकरण चल रहा है, इसमें आपकी एक गवाही होनी है, तो आप कहाँ पर हो? तो मैंने बताया कि मैं पटियाला में हूँ। कब तक रहोगे? कि 20 तारीख तक वहाँ हूँ। तो बोले ठीक है, आप वहीं रहिए, हमारी टीम वहीं आएगी और आपसे पूछताछ करेगी। ठीक है, आ जाइए। तो 20 तारीख को 2 बजे के आसपास 2:10 पे वो टीम पहुँची, तो उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया। तो कहने लगे कि बताइए, इसमें उस दिन वहाँ पर आपका फ़ोटो भी है, तो उस दिन क्या हुआ था? ये 25 मार्च 2022 की घटना है। वहाँ पर सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए ट्रायल हुई थी, जो एशिया चैंपियनशिप ओलंबतूर मंगोलिया में होनी थी, उसकी ट्रायल थी। तो ट्रायल के बाद जो पहलवान सेलेक्ट होते हैं और जो ऑफिशियल थे, जो स्पोर्टिंग स्टाफ था, साई के जो अधिकारी थे और प्रेसिडेंट साहब, सब मिलके ग्रुप फोटो बनाते हैं। तो जब वो ग्रुप फोटो लेने की बारी आई, तो जो एक भारी वजन की पहलवान थी, बड़े वजन की पहलवान थी, वो प्रेसिडेंट साहब के नज़दीक थी, खड़ी थी, और एकदम से कुछ छटपटा के और ये कह के मैंने यहाँ नहीं खड़ा होना, तो कुछ ऐसे, मतलब हमने क्लियर नहीं सुना, वो ऐसे एक्शन उन्हें किया। तो हम एकदम से उसकी तरफ ध्यान गया कि क्या बात हुई। तो वो एकदम से कुछ बोलती हुई और वहाँ से हाथ हिलाती हुई, वहाँ से लड़की आगे आके दूसरी जगह खड़े हो गए, बैठ के उसने अपना फ़ोटो सेशन पूरा कराया। लेकिन जब वो लड़की ने ऐसा रिएक्ट किया था, तो हमने जब उस तरफ देखा, तो प्रेसिडेंट साहब के हाथ ऐसी जगह थे कि जहाँ पर महिला के शरीर को इस जगह, ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि ये 25 मार्च 2022 की घटना है, when the Senior Asia Championship was taking place, and that is when this purported photograph was taken, and the lady wrestler was distinctly uncomfortable when she was standing next to Brijbhushan Sharan Singh. आपने ये बताया है कि क्या हुआ जब वो फोटो ली जा रही थी, उस महिला रेसलर से या किसी और से या बृजभूषण शरण सिंह ने से आपने इस वाक्य के बारे में बात की? नहीं, मैंने उससे उस समय में उस प्रकरण के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। बट इसके क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले देख चुका हूँ। बहुत सारी घटना देख चुका हूँ का क्या मतलब है? क्या आपने उनको पहले भी बदतमीजी करते हुए देखा है? मैंने दिल्ली पुलिस को भी ये कुछ और घटनाओं के बारे में बताने के लिए कहा था जी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये कह के बंद कर दिया कि नहीं, हमने आपसे इसी बारे में पूछना था। तो जगबीर जी, आप हमें बताइए कि आपने क्या देखा, या तो इस घटना में या इसके पहले आपने क्या देखा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम, जी बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2012 में पहली बार बृजभूषण जी इस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, और अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद एक जूनियर कंपटीशन था, जूनियर एशिया चैंपियनशिप थी कजाकिस्तान अलमाटी में। तो वहां पर पहली बार अध्यक्ष जी गए थे,
तो जिन खिलाड़ियों ने वहां पर पदक जीते, मेडल जीते, किसी को $200, किसी को $100, किसी को $50 का इनाम इन्होंने दिया। तो हम और हमारे साथी बड़े खुश थे कि भाई बहुत खुशी की बात है कि खिलाड़ियों को इनाम भी मिल रहा है और प्रेसिडेंट साहब खुद पहली बार ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आए हैं। हम और कुश्ती के जितने भी आदमी थे सारे बड़े खुश थे। और वहां पर इन्होंने पहले लड़कियों से शुरुआत की थी। तो शाम को जब हम प्रेसिडेंट साहब से खाने की टेबल पे मिले तो हमने उनको कहा कि आप ये इनाम लड़कियों की बजाय, लड़कों ने भी पदक जीते हैं, उनको भी इनाम दो। तो अध्यक्ष जी ने लड़कों को भी इनाम दिया। और जब वो टीम इंडिया में पहुंची तो यहाँ पर भी अच्छा स्वागत किया। एक नेशनल स्टेडियम है, उसके पास में एक क्लब है, वहाँ पर बुला करके पहलवानों को बादाम की, पैसे की अच्छी सुविधा, अच्छी वो की उन्होंने, मान सम्मान। कोचिज को भी, जो उनके साथ टीम के साथ कोच गए थे, उनको भी मान सम्मान दिया। तो हम बड़े खुश थे कि अध्यक्ष के साथ साथ एक मजबूत आदमी के साथ साथ एक पहलवानों की मदद करने वाला भी हमारा गार्जियन इस कुश्ती में आया है। लेकिन एक उससे अगले साल 2013 में एक इतनी भयानक घटना घटी कि उस दिन मेरे मन ने तो ये कहा कि ये कुश्ती में अध्यक्ष ने एक राक्षस आया है। वो घटना 2013 थाईलैंड पुकेत की है। 4-5 दिन की चैंपियनशिप खत्म होने के बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि आज खिलाड़ियों को इंडियन फूड्स का डिनर करवाएंगे। तो सभी खिलाड़ी और पूरा ग्रुप बहुत खुश था कि भाई बड़े अच्छे प्रेसिडेंट साहब मिले हैं, क्योंकि मेडल जीते थे उन खिलाड़ियों को वहाँ इनाम तो वहाँ साथ साथ दिया ही दिया था कि भी रात को अच्छा खाना भी खिलाएंगे। तो सब बड़े खुश थे। लेकिन जब 2013 में वो रात का डिनर जब हुआ तो मैं अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि वहाँ जो घटना घटी वो प्रेसिडेंट साहब ने खुद नशे में थे और जो उनके साथी थे वो भी सारे नशे में थे। और उन्होंने बच्चियों के साथ इतनी एबर जो शब्द नहीं कह सकता मैं, ऐसी घटनाएं घटी वहां पर के बच्चियों को अपने गले से लगाना, छूना, जहां से बच्चियों को नहीं छूना चाहिए उन बच्चियों के साथ वो किया। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप हमें बताएं, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप बोले अच्छे पहलवान बन सकते हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपको सप्लीमेंट देंगे, आपको ट्रैक सूट देंगे, आपको पैसे की मदद करेंगे, आप हमारे संपर्क में रहिए। तो ऐसी घटनाएं जब देखी तो बहुत सारी लड़कियां तो खाना बीच में छोड़ के ही चली गई और हमारा मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन इस देश में कानून ऐसा है कि हम बताएं तो बताएं किसको। प्रेसिडेंट खुद करने वाला है और किसी ने हमारे से पूछा नहीं। तो हमें भी यह नहीं पता था कि ये ऐसी शिकायत हम कर कहां सकते हैं। तो मैं इन बच्चियों की बहुत हिम्मत मानूंगा कि जो इतने बड़े आदमी के सामने खड़ा होकर इन्होंने अपना ये बातें बतानी शुरू की हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चलती रही, जबकि UWW का एक रूल था कि मिक्स कुश्तियां होती थी। एक मैच जैसे लगता था टूर्नामेंट के लिए 3 मैच लगते थे, 2 मैच लगते थे, तो उनमें मिक्स कुश्तियां होती थी। लेकिन अध्यक्ष जी ने अपना कार्यभार संभालते ही सबसे पहले ये किया कि जहां मेरी स्टेज लगेगी मेरे सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी, लड़कियों की कुश्तियां दूसरे मैचों पर होंगी, जबकि ये UWW के रूल के खिलाफ था। और उसके बीच बीच में बहुत सारे प्रकरण चलते रहे। उसके बाद 2022 की एक घटना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप कैडेट जो अंडर 17 की एक वर्ल्ड चैंपियनशिप सोफिया बुल्गारिया में हुई थी। वहां पर यह नियम है कि रेफरी अलग होटल में रहते हैं, जो
फेडरेशनों के अधिकारी वो अलग होटल में रहते हैं और खिलाड़ी और कोच अलग होटल में रहते हैं, जबकि वहां पर उस नियम का उल्लंघन करके प्रेसिडेंट साहब ने उसी फ्लोर पर जहां पर लड़कियां रह रही थी उसी होटल में रूम लिया, उसी फ्लोर पर लिया। ये फ्लोर में मैं कंफर्म नहीं हूं कि उसी फ्लोर पे था या ऊपर नीचे था, लेकिन रूम उसी होटल में था। ये बताइए कि आप जो बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में अलग अलग वाक़े आपने देखे, अलग अलग आपने ऐसे एपिसोड्स देखे जहां पर बदतमीजी की बृजभूषण शरण सिंह ने। अब आखिरकार जो ये एफआईआर हो रहा है, ये जो 2022 की घटना है जो कि अब एफआईआर में जिसकी जांच की जा रही है, उसमें आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने देखा अध्यक्ष जी अपने हाथ पैर बहुत चला रहे थे। इसका क्या मतलब है कि फोटो खींचते वक्त वो हाथ पैर बहुत चला रहे थे? हाँ, वही कहने का मतलब यही है मेरा कि किसी को हाथ लगा दिया, किसी को पैर लगा दिया। जगदीश जी, ये बताइए कि आप जो आपकी टेस्टिमनी है, ये कोर्ट में आप इसके साथ खड़े रहेंगे, बदलेंगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे हट गए हैं अपनी टेस्टिमनी से। 100% मैडम, 100%। अच्छा, जो अभी पहलवान यहाँ बैठे हैं वो सबके सब हरियाणा से हैं, आप भी हरियाणा से हैं। लोग फिर से बात यही करेंगे कि ये बृजभूषण उत्तर प्रदेश के हैं तो ये हरियाणा के पहलवान उनको हटवाना चाहते हैं, तो ये यूपी वर्सेस हरियाणा हो गया है। अरे मैडम जी एक बात सुन लीजिए, आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। जब ये 2011-12 में जब प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे हरियाणा से मैं ही अकेला और एक मेरा साथी, 2 ही शख्स से पूरे हरियाणा में जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से बगावत करके इसके साथ खड़े थे। अब आप पूरे हरियाणा से। अब आप सरकार और दिल्ली पुलिस से क्या चाहते हैं? मैडम जी, हम तो यही चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जो बृजभूषण जी ये कह रहे कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, तो बृजभूषण जी सुन लीजिए, कब हुआ और कैसे हुआ, कहां हुआ, वो आपके सामने खुलासा है पूरा। सुन लीजिए आप पूरा। तो जो लोग अभी प्रूफ मांग रहे थे वो आप कह रहे हैं ये है प्रूफ, ये है आपकी गवाही। जो और इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आपसे ये बात साफ करना चाहती हूं कि जिस वाकये की आप बात कर रहे हैं 2022 की, ये नाबालिग पहलवान है जिसके साथ फोटो खिंचाई जा रही थी? नहीं, ये बाकी 6 में है और ये सीनियर लड़की है, ये माइनर नहीं है। माइनर को मैं लड़कियों को किसी को नहीं जानता, मैंने ये भी पता नहीं था कि इस लड़की ने शिकायत की है। मुझे 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने फोटो दिखाया था, तब मुझे पता चला कि ये 25 मार्च की एक घटना हुई थी और ये फोटो है, उसमें आप हैं। आप उस घटना के बारे में बता दीजिए। दिल्ली पुलिस ने कोई जिक्र नहीं किया, तो सच्चाई को तो जब आप आंख बंद करके भी याद करोगे तो वो आपके सामने सारी सच्चाई आएगी। पर अभी जो ये नाबालिग है उसके पिताजी ने एक नया बयान अपना दर्ज किया है और ये कहा है कि कुछ बदतमीजी नहीं हुई थी, वो तो हमने बदले की भावना से एफआईआर लिखा दिया था। आपको लगता है कि इससे केस को ठेस पहुंचेगी? हाँ, मैं जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये 100% ये है कि उनको क्या लालच दिया गया है, धमकाया गया है, क्या खतरा है उनको, तो इसीलिए तो चिल्ला रहे थे सारे खिलाड़ी कि इसको पकड़ के बंद क्यों नहीं करते, वो माइनर उनको बच्चों को धमका रहा है, ये कर रहा है। मुझे ही नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कि आज, क्योंकि मेरे से कोई पूछेगा तो ही बताऊंगा ना। पिछले 1 साल में ये सीनियर एशिया चैंपियनशिप के बाद भी उनका यही रवैया रहा है बृजभूषण का? हर बार ही देखते थे कुछ ना कुछ, जहां भी नेशनल होता था, जो भी कुछ होता था, हर जगह ही देखते थे। अब वो सारी चीजें तो इतनी फेमस नहीं है कि क्या एक छोटी बात भी, भाई कहीं गए हैं तो अपनी गाड़ियों में लड़कियों को बिठा के ले जाना। भरी जैसे लखनऊ में ट्रायल के बाद ये बयान देना कि भाई एक भारतीय कुश्ती संघ ने एक
कनॉट प्लेस में एक ऑफिस खरीदा है और वहां पर 3-4 कमरे बनाए जा रहे हैं और वहां पर लड़कियां रुकेंगी। ये बयान ब्रजभूषण का खुद का है। अभी तक जितनी पुलिस की कार्रवाई हुई है, आपसे बयान दर्ज किया गया है, बाकी लोगों के साथ बयान दर्ज किया गया है, आपको लगता है कि ये जांच सही दिशा में जा रही है? हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं हूँ? क्योंकि जितनी तेजी से जांच चलनी चाहिए थी और ऐसे प्रकरण में तो गिरफ्तारी के बगैर जांच होगी। तो अगर आप अपराधी को इतना समय देंगे, जिस पे ऐसे एक्ट लगे उनको इतना समय देंगे, तो उनसे बात करने का, उनको बहलाने फुसलाने का बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो हर तरह से बाहुबली है। अरे जिसके इस देश में जो सबसे आज बड़ा दाऊद को मानते हैं, तो जिसके ऊपर दाऊद से संबंध होने के आरोप लगे, उसका आप समझ सकते हो कि कौन क्या है। जगबीर जी, अपनी गवाही देने के लिए और जो भी अभी तक एफआईआर में लिखा गया है उसकी तस्दीक करने के लिए भी आप ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट में भी आप इसके साथ ही खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ क्रंच पीरियड नाउ एंड द बर्डन इज गोइंग टू बी ऑन द पुलिस टू इंश्योर दैट द चार्जशीट इज रिटन इन अ फैशन दैट इंश्योर्स that justice is done. We are going to be talking about this at 10 on the News Hour agenda as well. Thanks for watching.